اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کو بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والوں اس صورت میں جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ محکم اور کوئی منسوخ شدہ حکم نہیں، یہ آخری حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ 16 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کے ماننے والو، اللہ کے نبی کو ماننے والو، قرآن کے ماننے والو، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والو، لیبلونکم اللہ، ضرور بر ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ۔ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ کی آزمائش دونوں صورتوں میں ہے، نعمتیں دے کر اور نعمتیں لے کر، دونوں صورتوں میں اللہ کی آزمائش ہے۔ دے کر اللہ دیکھتے ہیں کہ کون شکر ادا کرتا ہے، کون ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کون اپنی ذہانت، لیاقت، محنت اس کی طرف لگاتا ہے، سیلف میڈ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اور کم کر کے اللہ آزماتا ہے کہ کیا انسان صبر بھی کرتا ہے، کہ جب میں دیتا ہوں تو اس وقت تو خوش ہوتا ہے، اور جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے دونوں صورتوں میں آزمائش۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو، ایمان والوں کو ضرور آزمائیں گے۔ تو اس لیے ایمان والوں پہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تب بھی، اور جب کوئی کامیابی ملے اور کوئی بڑی چیز ملے انسان کو دنیا کے حساب سے تب بھی، اور دین کے حساب سے ملے، دین کا علم ملے، قرآن کے ساتھ انسان کو جڑنا ملے، نمازیں روزے کرنے کے لیے آسانیاں ہو انسان کو دین پہ چلنے کے لیے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ آسانیاں فرمائے، اور اللہ یہ آسانیاں ہی دیے رکھیں۔ مشکلات بڑی مشکل چیز ہوتی ہیں، تو ضرور آزمائیں گے، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، صحت کے ساتھ، علم کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لازماً لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ آزمائیں گے، ہر حال میں اللہ آزمائیں گے۔ من الصید، یہ عام زندگی میں بھی ہے، اور پھر خاص چونکہ عمرے کی بات ہو رہی ہے اور حج کی بات ہو رہی ہے اور حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے، ہم آزمائیں گے تمہیں الصید، شکار کے، تنالہ ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ یعنی احرام کی حالت میں اللہ نے شکار جو ویسے حلال ہیں، جو جانور ہیں، اس کو ممانعت فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے جاؤ گے، حج کے لیے میقات سے کئی دنوں کا سفر کر کے تم پہنچو گے، راستے میں تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے شکار تک، اتنا قریب تمہارے پاس آ جائے گا۔ وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے اور تمہارے پاس جو تیر ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے تم ان کے ساتھ ان کا شکار کر سکتے ہو، اتنے قریب سے تمہیں آزمائیں گے ہم آپ کو کہ کیا اللہ کا حکم مانتے ہو، یا تمہارا دل للچا جاتا ہے اور وہ اندر کا جو شوق ہے یا کوئی ضرورت ہے اس کے تحت جب تم کرتے ہو، کیونکہ شکار بھی تو ایک کھیل تماشا ہے نا، تو اللہ کی یاد کو چھوڑ کے کیا تم اس کھیل تماشے کی طرف ہو جاتے ہو، تو وہ تمہارے ہاتھ بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے، اور وہ تمہارے نیزے اور برچھے جو ہیں وہ بھی اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ تم اس کو شکار کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ لِیَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ ظاہر کر دے، سامنے آ جائے کھل کے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، انہیں پتہ ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے سب پہ، مَن یَخَافَہُ بِالْغَیْبِ، کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے کہ اپنے رب کو غائبانہ طور پہ اس سے کون ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ سب کچھ رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری نظریں اللہ کو نہیں پا سکتی، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ جو قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ سب میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کا حساب کتاب اسی حساب سے ہوگا جس نیت اور خلوص سے ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس سبق کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ بعد میں عمل کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ تو کون غیب میں رب سے ڈرتا ہے؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس اگر
तुम में से कोई हद से निकल गया, अल्लाह की हद को तोड़ दिया कि कोई देखने वाला नहीं, दुनिया तो नहीं देखती, इससे बंदा बच सकता है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। तो किसी वक्त ये आ गया किसी के ख्याल में, बाद अजाले का उसके लिए फलहू अजाब नलीम, तो अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब देंगे। अल्लाह से ऐसे डरना है कि जैसे इंसान अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहा है, अपने यकीन से दिल से देख रहा है। अगर ये यकीन पैदा नहीं हो सकता तो कम से कम इस बात पे तो बिल्कुल यकीन है कि अल्लाह तो हमें हर हाल में देख रहा है। और उलमा फरमाते हैं, तफसीर में लिखा होता है, बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि सहाबा कराम से एक भी वाक़या ऐसा मंसूब नहीं है कि उन्होंने हालत एहराम में इस शिकार को उन्होंने किया हो और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की हो। कोई एक वाक़या भी रिकॉर्ड नहीं है कि जो सहाबा कराम में से किसी ने ये अल्लाह का हुक्म तोड़ा हो, इस हुक्म के से तजावुज़ किया हो, एक रिकॉर्ड भी नहीं है। और उसके बदले में देखें, अगर हम याद करें बनी इसराइल का सब्त का वाक़या, हफ्ते वाले दिन उनको मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी थी। तो समुंदर में मछलियाँ उछल उछल के आती थी, उनका दिल ललचाया और उन्होंने हीला तलाश करके उसके वो गड्ढे बना लिए और उनके अंदर पानी और मछलियाँ, और उनको इतवार वाला दिन पकड़ लिया। लेकिन सहाबा कराम से एक वाक़या भी रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे कि सहाबा कराम ने इसकी खिलाफ वर्जी की। और दूसरी तरफ और मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की देखें कि जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी तरफ बुरी नीयत से हाथ डाला, और अल्लाह फरमाते हैं कि उसके दिल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत घर कर गई थी, इतनी मोहब्बत हो गई थी, और उसने बुराई की नीयत से हाथ डाला। और उलमा फरमाते हैं कि 7 दरवाज़े थे या 11 दरवाज़े थे जो बंद हुए, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जब दरवाज़ों की तरफ भागे तो अल्लाह ताला ने ख़ुद रास्ते बना दिए, सब दरवाज़े खुलते गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस बुराई से बच के बाहर आ गए। क्यों? उन्हें ये अल्लाह का डर था। अल्लाह ये कहते हैं यख़ाफ़हु बिलग़ैब, अल्लाह से ऐसे डरें जैसे डरने का हक़ है गैब में। क्यों? कि ये बात गैब की है, अल्लाह के सामने सब कुछ हाज़िर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है। ये बात तो शिकार की है, एहराम की, लेकिन ये ज़िंदगी के कदम कदम पे इंसान के सामने आ जाते हैं कि गुनाह भी एक तरफ होता है, मौके होते हैं इंसान के पास, बहुत मौके होते हैं हराम खाने के, हराम कारी करने के, और नेकियों के भी मौके होते हैं। आप देखें इंसान किस तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला दोनों मौके आसानी से मुयस्सर कर देते हैं। ये आजमाइश है जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें किसी न किसी चीज़ से आजमाएंगे। गुनाह करना भी बड़ा आसान सा हो जाता है इंसान के लिए, बड़ा आसानी से कर लेते हैं, और नेकी करनी भी बड़ी आसान होती है। दोनों चीज़ों में आप देखें इंसान गुनाहों को आसानी से करता रहता है, या असल में रब से डर के नेकियों को करता है और गुनाहों से बचता रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारों, ला तक़्तुलुस सैदा, ना कत्ल करना शिकार को, ना मारना शिकार को, अंतुम हुरम, जब तुम हालत एहराम में हो। जब हालत एहराम में हो तो शिकार नहीं करना, उसको कत्ल नहीं करना। और इसके मानी ये भी हैं कि जब हदूद हरम में तुम होगे तो हर चीज़ वहाँ अमन में है, वहाँ भी कोई शिकार नहीं करना सिवाय इसकी कि जो इजाज़त है ज़बह करने की, और किसी दूसरे का माल भी नहीं लेना। जब तुम एहराम में या हदूद हरम में हो तो उस वक़्त तब तुमने जानबूझ के कोई काम नहीं मारना, किसी को नहीं मारना। वमन कतलहु मिनकुम, और अगर तुम में से किसी से ऐसा कोई काम हो जाए, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, अमदन अगर किसी से हो जाए, किसी का जानवर था उसको ज़िबा कर लिया, किसी भी वजह से कोई बात होगी, किसी वक्त इंसान से गलती हो गई, फ़जज़ाउ, तो बस इसका बदला है। अब अल्लाह ताला इतना सख्त हुक्म देने के बावजूद जो सहाबा कराम ने बिल्कुल बैन ही उस पर अमल करके दिखाया, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई कमज़ोर है थोड़ा तो उसके लिए भी एक रास्ता है। तो उसका ये रास्ता है कि जो ऐसा शिकार करे या किसी के कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर ले, मिस्लु मा कतला नाअमी, तो वो उसी जैसा जानवर जो उसने मारा है, जो उसने ज़बह किया, उसके मिसल उसका जानवर वो ज़िबा करे। यह को हुक्म देता है या फैसला करेंगे बेही, साथ इसके, ज़वा अदल मिनको, तुम में से दो नेक लोग, दो साहिब हैसियत, इंसाफ पसंद लोग, दीनदार लोग, मोतबर लोग फैसला करेंगे कि ये इसने बकरी की, या ये इसने गाय की, ये इसने भेड़ को ज़बह किया, अब इसके बराबरी की, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये उसको ज़बह करेगा। और फिर क्या करेगा ज़बह करके?
हदियम बलगल काबा, ये उस जानवर के साथ है कि जो काबा की तरफ जाके जिसको ज़बह करना है। और कफ़ारतन, तो इसका कफ़ारा है, यानी उस जानवर को हदूद हरम में ज़बह कर लिया या शिकार कर लिया तो उसका कफ़ारा है तआम व मसाकीना, मस्कीनों को खाना खिलाए। अब यहाँ मस्कीनों की तादाद मुकर्रर नहीं है, उस जानवर के बराबर जितने लोग खाना खा सकते हैं वो साहिब अदल लोग बताएंगे कि 10 लोग खाना खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं, 50 खा सकते हैं, या अगर कोई बड़ा जानवर है तो 100 खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। उसके मुताबिक इतने मस्कीनों को खाना खिलाना है, पका के खाना खिलाना है। वही बात है, पूरी पूरी उसके अंदर जो सारे लवाज़मात हैं। और अदल ज़ाले का सयामन, या कि इसके बराबर वो रोज़े रखे। रोज़े आप कितने रखने हैं कि वो खाना अगर एक शख्स खाता है, रोज़ों की तादाद भी अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, तो वो कितने दिन खा सकता है। वो अगर 100 दिन खा सकता है तो 100 रोज़े रखेगा, अगर 10 दिन खा सकता है 10 दिन रोज़े रखेगा, अगर ज़्यादा खा सकता है ज़्यादा रोज़े रखेगा। उतने दिन के रोज़े के वो खाना उसका जितना उसने ज़बह किया है, जितना उसका गोश्त है, वो इतना उसके दिन गुजर जाएँ उसके साथ, इतने रोज़े रखने हैं। यानी अल्लाह ने न लोगों की तादाद मुकर्रर की कितने मस्कीनों को, और न रोज़ों की तादाद मुकर्रर की है कि कितने रोज़े रखने हैं। उस गोश्त के मुताबिक, उस खुराक के मुताबिक जो दो साहिब अदल दीनदार मोतबर लोग फ़ैसला करेंगे, उसके मुताबिक ये तादाद मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ हो सकती है कि जिस जानवर को उसने ज़िबा किया उसके साथ है। ले यज़ू का, ताकि चखो तुम वबाल अम्र ही, वबाल उस चीज़ का जो तुमने किया, जो गलती की है ये उसकी सज़ा है, ये उसका कफ़ारा है। अल्लाह ताला देखें इंसान से गलती होने पे भी रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें उस गलती की माफ़ी मिल सकती है और किस तरीके से तुम अपने रब को राज़ी कर सकते हो। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ा, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तुम्हें इससे पहले जो हो गया, इस हुक्म आने से पहले जो तुमने किया अल्लाह ने वो माफ़ कर दिया। जो इस दुनिया से चले गए उन पे भी गुनाह की कोई पकड़ नहीं, और जो मौजूद हैं उन पे भी अब गुनाह की पिछले की पकड़ नहीं है। फमन आदा, अब अगर कोई दोहराएगा, अब इसका इयादा करेगा अल्लाह का हुक्म आने के बाद, फ़यन तकमुल्लाह मिनहु, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। ये अल्लाह का बड़ा सख्त नाम है, इंतकाम लेना। यानी जो कसूर हुआ है माफ़ी के बजाय उस अल्लाह बदला लेगा उसके बराबर, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, तो अल्लाह ताला ज़बरदस्त भी हैं, गालिब भी हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। और अल्लाह इंतकाम लेने वाले, अल्लाह इंतकाम ले सकते हैं। यानी ये बहुत सख्त किस्म का हुक्म था। और इस हाल में कि एहराम के अंदर इंसान का पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। तो जब उससे ये गलती होगी तो अल्लाह ताला फिर भी इतने करीम है कि अल्लाह ने उसका अजाला के लिए रख दिया कि वो इस तरीके से अपने आप को कर सकता है। तो ये अल्लाह ताला के वो फ़राइज़ हैं जो अदा करने वाले हैं, कबीरा गुनाहों से बचने वाले हैं, उस पे इसरार नहीं करते। एक दफ़ा जब हो जाता है उस पे तौबा करते हैं, जो अल्लाह ने कफ़ारा कहा हुआ है उसको पूरा करते हैं, और आइंदा उस गुनाह को दोहराते नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहे हैं व आदा यन तक मुल्लाह मन हो, अल्लाह जो कोई उसको इरादा करेगा फिर इस हुक्म आने के बाद तो अल्लाह उससे इंतकाम लेंगे। और अल्लाह के लिए इंतकाम लेना कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह हर चीज़ पे गालिब है, सब कुछ उनके दस्ते कुदरत में है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में दिलों में बिठा दे, जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हुई अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।